हेलो मेरे पढ़ाकूओं, कैसे हो? बढ़िया। लास्ट टाइम क्या पढ़े थे? एरर्स, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में। यस और नो? क्या पढ़ाई कर रहे हो? कंटिन्यूसली लेक्चर देख रहे हो? बढ़िया। लास्ट टाइम वी हैव स्टडीड अबाउट एरर्स, टाइप्स ऑफ एरर, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर्स. Today also I will continue with the topic error. Today we will study about absolute error, relative error and percentage error. आज किसके बारे में पढ़ेंगे? Absolute error, relative error and percentage error. क्या होता है ये सब? अभी पता चल जाएगा. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा absolute error क्या होती है, कैसे मेजर करेंगे, relative error क्या होती है, percentage error क्या होती है. Suppose the values obtained in several measurements are A1, A2, A3 up to AN. How many observations we have taken? N number of observations. A1, A2, A3 up to AN. मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं. मान लो कि किसी को इस मार्कर की लेंथ मेजर करने को दी है, वो 10 बार इसे मेजर करता है. फर्स्ट टाइम that is A1. When he is measuring length of this marker pen again, then that is A2. Once again, then A3. This way he is measuring length of this marker 10 times. तो क्या हो जाएगा? A1, A2, A3 up to A10. But here we are taking n number of observations, A1, A2, A3 up to AN. Last time I told you, whenever we are taking large number of observations, at that time average of that observations will give you true value. अगर true value निकालनी है, अगर हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हमें उसकी ट्रू वैल्यू मालूम पड़े, या ऐसी कोई मेथड नहीं है हमारे पास जिससे ट्रू वैल्यू पता चले, तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड टेक मीन. व्हेन वी टेक एवरेज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, that average will be considered as true value of that physical quantity. So to find true value of the physical quantity, what we have to take? We have to take average of all the observations. So arithmetic mean of these measurements is a mean, that is A1 plus A2 plus up to AN divided by n. मान लो कि 10 रीडिंग लिए होते, A1 प्लस A2 प्लस अप टू A10, देन डिवाइड बाय 10. 5 रीडिंग लिए होते तो A1 प्लस A2 प्लस अप टू A5 डिवाइड बाय 5. Here we are considering n number of observations, therefore A1 plus A2 plus up to AN divided by n. That is nothing but a mean. Mean value of the physical quantity is considered as true value. This mean value of the physical quantity can be considered as true value. The magnitude of the difference between the individual measurement and true value of the quantity is called the absolute error of the measurement. Last time we have studied about error. Difference between measured value and true value is called error. Magnitude of the difference between magnitude of the difference between the individual measurement and the true value of the quantity is called the absolute error of the measurement. This is the definition of absolute error. कैसे absolute error पता चलेगी? हमें डिफरेंस पता लगाना है. किसका? इंडिविजुअल मेजरमेंट का और ट्रू वैल्यू का. These are the individual measurements A1, A2, A3 up to AN, and this is the true value. So difference between individual measurement and true value will give you error. But if you want absolute error, then you have to find magnitude. Magnitude find करना पड़ेगा. First we are finding difference between individual measurement and true value. That is delta A1. Delta A1 is equal to individual measurement minus true value. First individual measurement, that is A1 minus A mean. Delta A2, that is second individual measurement minus A mean.
डेल्टा ए एन दैट इज nth इंडिविजुअल मेजरमेंट माइनस ए मीन, डेल्टा ए एन दैट इज nth इंडिविजुअल मेजरमेंट माइनस ए मीन. So this way we can find difference between individual measurement and true value. The calculated delta A may be positive in certain cases and negative in some other cases. मतलब ये जो मिलने वाला है डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा AN, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. मान लो कि A1 की वैल्यू ज़्यादा है ट्रू वैल्यू से, तो ये डिफरेंस कैसा आएगा? पॉजिटिव. मान लो कि A2 की वैल्यू A मीन से कम है, तो डिफरेंस कैसा आएगा? नेगेटिव. सो देर आर टू पॉसिबिलिटीज. द कैलकुलेटेड डेल्टा ए मे बी पॉजिटिव इन सर्टेन केसेस एंड नेगेटिव इन सम अदर केसेस. मतलब दोनों मिल सकते हैं, पॉजिटिव भी मिल सकता है, नेगेटिव भी मिल सकता है. बट एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. दिस इज द साइन ऑफ मैग्नीट्यूड मोड जो आप मैथ्स में लेते हो. When we are taking magnitude of the difference between individual measurement and the true value, then that is always positive. मतलब इसको अगर मोड में डाला जाए, डेल्टा A2 की वैल्यू कैसे आई है? नेगेटिव. मान लो कि ये कितनी आई? -0.05. अगर उसको मोड में डाल दिया जाए, उसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए, तो वो क्या आएगा? +0.05. अगर कोई वैल्यू डिफरेंस नेगेटिव भी मिल रहा है पर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें, मैग्नीट्यूड, देन द मैग्नीट्यूड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर एंड एब्सोल्यूट एरर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. मतलब हमें चाहे डिफरेंस पॉजिटिव मिले, नेगेटिव मिले, बट एब्सोल्यूट एरर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. चलो एब्सोल्यूट एरर मिल गई. पहले में कितनी एरर है, सेकंड में कितनी एरर है? वी गॉट द एब्सोल्यूट एरर. द एरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स इज टेकन एज द फाइनल और मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ द वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ए. अब कितनी एब्सोल्यूट एरर मिली? n नंबर ऑफ. वी आर गेटिंग n नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स. सो here arithmetic mean of all absolute errors is called mean absolute error. हमें क्या चाहिए? मीन. एवरेज कितनी एरर मिल रही है, इतनी सारी एरर का क्या करेंगे? हमें क्या चाहिए? एवरेज एरर. तो एवरेज एरर कितनी है? दैट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर. व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू. What is mean absolute error? That is arithmetic mean of all absolute errors. So delta A mean is nothing but magnitude of delta A1 plus magnitude of delta A2 plus magnitude of delta A3 plus up to magnitude of delta AN divided by n. This is the arithmetic mean of all the absolute errors. So from this we will get mean absolute error. We have true value, we have mean absolute error. For a single measurement, the value we get may be in the range a mean plus or minus delta a mean. If we consider single measurement a, कोई एक measurement लिया जाए, क्या लिया गया? a, then it will lie between a mean plus or minus delta a mean. मतलब इसकी रेंज यहाँ तक होगी. कैसे? ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन लेस देन और इक्वल टू ए लेस देन और इक्वल टू ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन. सो फॉर सिंगल मेजरमेंट ए the range will be from a minus delta a mean to a mean plus delta a mean. मतलब इसकी वैल्यू कहीं इन दोनों के बीच में होगी. क्या रेंज होगी? ट्रू वैल्यू माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर टू ट्रू वैल्यू प्लस मीन एब्सोल्यूट एरर. इन दोनों के बीच में कहीं होगा ये.
सिंगल मेजरमेंट, करेक्ट, क्योंकि ट्रू वैल्यू से या तो ज़्यादा आ सकता है, ट्रू वैल्यू से या तो कम आ सकता है, ठीक, या तो उसके जितना आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी। तो इसकी रेंज क्या होगी? ट्रू वैल्यू से कम और ट्रू वैल्यू से ज़्यादा। द रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए मीन टू द मीन वैल्यू ए मीन ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड। जनरली वी मेजर relative error or percentage error. We don't measure this absolute error. तो एब्सोल्यूट एरर ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती, ज़्यादा क्या यूज़ किया जाता है? रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो है क्या रिलेटिव एरर? रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर, रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू इज नथिंग बट रिलेटिव एरर। रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू of physical quantity is called relative error. So relative error is equal to mean absolute error, that is delta A mean, upon mean value, that is true value A mean. Percentage error, formula of percentage error is very simple. What is the formula of percentage error? Percentage error is relative error into 100%. जो रिलेटिव एरर मिली उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? परसेंटेज एरर। सो परसेंटेज एरर इज रिलेटिव एरर इंटू 100. रिलेटिव एरर इंटू 100 विल गिव यू परसेंटेज एरर. सो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100%. सो दिस वे वी कैन फाइंड एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर. तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर. खास ध्यान दें, आपके पास जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसका क्या निकालो? एवरेज. एवरेज क्या दे देगा आपको? मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू. एक बार आपके पास मीन वैल्यू मिल गए तो क्या करना है? वी हैव टू टेक द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड मीन वैल्यू. इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड मीन वैल्यू, दैट इज ट्रू वैल्यू, विल गिव यू एरर. बट इफ यू वांट absolute error, then you have to take magnitude. So difference between individual measurement and true value is delta A. When we take magnitude, then magnitude will give you absolute error. Once absolute error is available to us, we can take average of all the absolute errors, that will give you mean absolute error. Now if we are taking single measurement, then single measurement can be represented as true value plus or minus error. True value plus or minus mean absolute error. तो कभी भी सिंगल मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो क्या लिखेंगे? ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस, ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर. तो इसमें हमारी पूरी रेंज आ गई, जितने भी ऑब्जर्वेशन लिए वो पूरे के पूरे इस रेंज में आ गए. व्हेनेवर वी वांट टू रिप्रेजेंट मेजरमेंट, देन measured value can be represented as true value plus or minus mean absolute error. चलो, हमें सिंगल फिजिकल क्वांटिटी मिल गई, हमें सिंगल मेजरमेंट मिल गया. चलो सिंगल मेजरमेंट मिल गया, फिर उसके बाद क्या निकालना है हमें? रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू, दैट इज ट्रू वैल्यू. परसेंटेज एरर मल्टीप्लाई बाय 100, यू विल गेट परसेंटेज एरर. जनरली वी यूज़ रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर. जनरली कौन सी एरर निकाली जाती है? रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर. एब्सोल्यूट एरर का बहुत कम यूज़ किया जाता है. क्या आपको ये टॉपिक पता चल गया? एकदम क्लियर, परफेक्ट. क्या इसका एक एग्जांपल सॉल्व करें? मज़ेदार. अगर आ गया है तो नेक्स्ट एग्जांपल फटाफट सॉल्व हो जाएगा. अगर टॉपिक पता चल गया है तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है नेक्स्ट एग्जाम्पल. तो आइए सोल्व करते हैं एग्जाम्पल 2.7. व्हाट इज गिवन? वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम के बारे में आप लोग जानते होंगे. सो वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम. इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स द रीडिंग्स टर्न आउट टू बी 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड एंड 2.80 सेकेंड.
कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। जैसे कि हमने अभी पढ़ा थियरी में कैसे एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, कैसे रिलेटिव एरर निकालनी है और कैसे परसेंटेज एरर निकालनी है। तो स्टार्ट करें तो सबसे पहले क्या फाइंड कर लेना चाहिए, एवरेज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस दैट विल गिव अस मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू। तो पहले हम टाइम पीरियड की ट्रू वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले फॉर्मूला क्या था, टी मीन इज इक्वल टू एवरेज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट इज 2.63 सेकेंड, सेकेंड दैट इज 2.56 सेकेंड प्लस 2.42 सेकेंड प्लस 2.71 सेकेंड प्लस 2.80 सेकेंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइड बाय 5 दैट इज 13.12 डिवाइड बाय 5, 13.12 डिवाइड बाय 5 दैट इज 2.624, 13.12 डिवाइड बाय 5 दैट इज 2.624 सेकेंड। तो अब यहाँ तक आंसर लिखें तो क्या सही रहेगा। अब आप लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ चुके हो। हमारे जो रीडिंग्स हैं उसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2। तो ये जिस भी क्लॉक से मेज़र किया होगा वो क्लॉक डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक की एक्यूरेसी देती होगी, 2 डिजिट तक की। तो डेसिमल के बाद हमारे पास 2 डिजिट तक की इंफॉर्मेशन है। तो लास्ट जो आंसर होना चाहिए उसमें भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट आने चाहिए, 2। सो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम फाइनल आंसर जो है उसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट लिखें, नहीं तो हमारा जो एवरेज वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू जो है वो जो हमने ऑब्जर्वेशन लिए हुए हैं जिस क्लॉक से उससे भी ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएगा, जबकि हमने कोई क्लॉक तो चेंज की नहीं है, हमने तो सिर्फ एवरेज निकाला है। तो सेम क्लॉक के लिए जो भी ऑब्जर्वेशंस लिए हैं उसका मीन भी निकालेंगे, तभी हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही आंसर लिख सकते हैं। तो 2 डिजिट तक आंसर लिखेंगे। द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड दैट इज 4 एंड दैट इज स्मॉलर देन 5। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5 then preceding digit remain unchanged, so the final answer should be 2.62 second. So average value of time period that is 2.62 second. चलो ट्रू वैल्यू तो हमें मिल गई। अब क्या निकालना है हमें, एब्सोल्यूट एरर्स, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। चलो पहले एब्सोल्यूट एरर निकालें। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना चाहिए, डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3। मुझे बताओ एरर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, डेल्टा T1 इज इक्वल टू T1 माइनस टी मीन, डेल्टा T1 इज इक्वल टू T1 माइनस टी मीन। व्हाट इज T1, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट इज 2.63 सेकेंड, सो 2.63 माइनस 2.62 that is 0.01 second. Same way we have to find delta T2. Delta T2 is equal to T2 minus T min is equal to 2.56 minus 2.62। चलो 2.56 माइनस 2.62 मतलब क्या आएगा, माइनस 0.06 सेकेंड। डेल्टा T3 इज इक्वल टू T3 माइनस टी मीन। चलो T3 माइनस टी मीन 2.42 माइनस 2.62, 2.42 माइनस 2.62 दैट इज माइनस 0.20। डेल्टा T4 इज इक्वल टू T4 माइनस टी मीन इज इक्वल टू T4 दैट इज 2.71
माइनस 2.62, 2.71 minus 2.62, that is 0.09 second. Delta T5, that is T5 minus T min is equal to 2.80 minus 2.62, 2.80 minus 2.62, that is 0.18 second. So these are the errors in measurement. चलो अब मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लें. मीन एब्सोल्यूट एरर क्या बनेगा? मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा टी मीन इज इक्वल टू magnitude of delta T1 plus magnitude of delta T2 plus magnitude of delta T3 plus magnitude of delta T4 plus magnitude of delta T5 divided by 5. Magnitude of delta T1, that is 0.01 plus magnitude of minus 0.06, that is plus 0.06. मैग्नीट्यूड लेंगे तो नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस 0.20 सेकेंड, that is plus 0.20 सेकेंड, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ 0.09 सेकेंड, 0.09 सेकेंड, plus magnitude of 0.18 second, that is 0.18 divided by 5. 0.01 plus 0.06, 0.7, 0.7, that is plus 0.2, 0.27, 0.27 plus 9, 0.36, 36 plus 18, that is 0.54, 0.54 divided by 5. So 0.54 divided by 5, you will get 0.108. 0.54 divided by 5, we will get 0.108 second. Once again, we are getting 3 digits after decimal. बट डेसिमल के बाद हमें कितने डिजिट तक आंसर लिखना है? 2. तो द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is greater than 5, then preceding digit should be raised by 1. So the final answer will be 0.11 second. तो डेल्टा टी मीन हमारा क्या बन जाएगा? 0.11 सेकेंड. करेक्ट. अब यहाँ से देखा जाए तो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू क्या बनेगी? ये आंसर को अगर चेक किया जाए तो T, that can be written as T mean plus or minus delta T mean. Yes or no? तो T mean हमारा क्या मिला? 2.62 सेकेंड प्लस और माइनस 0.11 सेकेंड. तो हमारा जो टाइम पीरियड होगा वो इसकी रेंज में होगा. मतलब 2.62 माइनस 0.11 करें तो क्या मिलेगा? 2.62 माइनस 0.11 क्या मिले हमें? सो द रेंज ऑफ टाइम will be from 2.62 minus 0.11, that is 2.51 second to 2.62 plus 0.11, that is 2.73. Here this error 0.11 second is very large. ये एरर बहुत बड़ी है 0.11 सेकेंड. इसी की वजह से टाइम पीरियड में इतना वेरिएशन आ रहा है 2.51 सेकेंड टू 2.73 सेकेंड.
मतलब यहाँ पे अनसर्टेनिटी देखी जाए तो डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट में भी अनसर्टेनिटी है, सेकंड डिजिट में भी अनसर्टेनिटी है। सो फाइनली वी शुड राइट आंसर अप टू ओनली 1 डेसिमल प्लेस। कहाँ तक आंसर लिखना चाहिए? 1 डेसिमल प्लेस, क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी 2 डिजिट में आ रही है। तो एक्चुअली सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होता है? 1 रिलायबल नंबर प्लस 1 अनसर्टेन नंबर। तो यहाँ पे एक ही डिजिट में अनसर्टेनिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं t को, द रेंज ऑफ t शुड बी 2.6 प्लस और माइनस 0.1 सेकेंड। इस टाइम पीरियड को 2.6 प्लस और माइनस 0.1 सेकेंड तक लिखना चाहिए। अगर यहाँ पे एरर 0.11 सेकेंड की जगह 0.03 सेकेंड मिली होती, 0.11 सेकेंड की जगह क्या मिली होती? 0.03, विच इज स्मॉल एरर। एट द टाइम वी शुड राइट द आंसर 2.62 प्लस और माइनस 0.03 सेकेंड। तब आंसर को ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एरर छोटी है तो वेरिएशन भी कम होगा। पर यहाँ पे एरर बहुत बड़ी है तो उसे 2 डिजिट तक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आंसर कहाँ तक लिखेंगे? 2.6 प्लस और माइनस 0.1। 2.6 माइनस 0.1 करेंगे तो क्या मिलेगा? 2.5। और 2.6 प्लस 0.1 करेंगे तो क्या मिलेगा? 2.7। मतलब 2.5 टू 2.7 तक की इसकी रेंज होगी। मतलब वेरिएशन आने वाला है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट में आने वाला है। यहाँ पे तो क्या होगा? 51, 52, 53, 54, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। सो फाइनली वी शुड राइट आंसर अप टू ओनली 1 डेसिमल प्लेस। सो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2.6 प्लस और माइनस 0.1 सेकेंड। ये हमने क्यों किया? क्योंकि एरर बहुत बड़ी है। ठीक, तो टाइम पीरियड जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? 2.6 से लेके 2.5 से लेके 2.7 सेकेंड तक। मतलब टाइम पीरियड कैसे, हाउ कैन वी राइट सिंगल मेजरमेंट? 2.6 प्लस और माइनस 0.1 सेकेंड, मीन वैल्यू प्लस और माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। चल हमें टाइम पीरियड मिल गया, एब्सोल्यूट एरर मिल गई, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब क्या निकालें? रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। चल सीधा परसेंटेज एरर निकाल लेते हैं। परसेंटेज एरर percentage error is, what is the formula for percentage error? Mean absolute error upon mean value of physical quantity into 100%, डेल्टा टी मीन अपॉन टी मीन इंटू 100%। डेल्टा टी मीन यहाँ पे क्या है? ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हमने मीन एब्सोल्यूट एरर क्या कर दी है? 0.1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 0.1 डिवाइड बाई 2.6 इंटू 100%। 0.1 डिवाइड बाई 2.6 यू विल गेट इज इक्वल टू 0.0384 इंटू 100%। 0.0384 into 100%. So this can be written as 3.84%. But here we are dividing these two values. So we have to apply division rule. And in division rule we have studied that final result should be written up to least number of significant figures. मुझे पता है इसमें significant figure कितने? 1। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 2। तो फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? 1। सो हियर द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड दैट इज 8 ग्रेटर देन 5, देन प्रीसीडिंग डिजिट शुड बी रेज्ड बाय 1। सो द फाइनल आंसर विल बी 4%। तो आंसर क्या बनेगा? 4%। सो द परसेंटेज एरर दैट इज 4%। क्या समझ में आया? पहले क्या निकाल? एवरेज। क्या मिल जाएगा? ट्रू वैल्यू। फिर क्या निकालो? डिफरेंस। एक बार डिफरेंस मिल गया, उन सब का क्या ले लो? एवरेज। क्या मिल जाएगी? मीन एब्सोल्यूट एरर।
एक बार मीन एब्सोल्यूट एरर मिल गई तो फिजिकल क्वांटिटी को कैसे डिनोट किया जाता है, ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस एरर। ट्रू वैल्यू हमारे पास है प्लस और माइनस एरर, एरर बड़ी है तो उसका डेसिमल के बाद वाला सेकंड डिजिट ड्रॉप किया जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा 2.6 प्लस और माइनस 0.1 सेकेंड। एरर जो है वो हमेशा छोटी होनी चाहिए, ज़्यादा एरर होनी चाहिए नहीं। तो यहाँ पे 2.6 प्लस और माइनस 0.1 सेकेंड। चलो एक बार हमें ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू मिल गई, उसके बाद हम परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100% विल गिव यू परसेंटेज एरर। तो यहाँ पे परसेंटेज एरर कितनी मिल रही है, 4%। काफ़ी बढ़िया एग्जाम्पल है। राइट दिस एग्जाम्पल 2 times in your notebook. I am giving you this example in homework. एटलीस्ट 2 बार इसे लिखें, प्रैक्टिस करें, तभी आपके लिए ऐसे एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आसान बन जाएंगे। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। प्रैक्टिस करिए तो जो भी मैं एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल करवाता हूँ एटलीस्ट सॉल्व देम 2 times. I hope the concept of absolute error, relative error and percentage error is now clear to you. Next time फिर से हम एरर में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टाइम और एरर पे चर्चा करने वाले हैं। एरर का टॉपिक कंटिन्यू है, आगे और भी मज़ा है, अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। डायमेंशनल एनालिसिस की तरह ये टॉपिक भी थोड़ा बड़ा है पर मज़ेदार है। आई एम स्टॉपिंग हियर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।